And all of us should understand that an organization's alumni are the reflection of its past, and definitely it is the representation of its present and a link to its future. And all must agree on this. Earlier, educational institutions were not having so much linkage with the alumni community, but with the advent of social media, alumni relationship has taken a different flavor. And universities have started to harness the power of alumni through various networking platforms like LinkedIn, Facebook, etc. And some of our ex-students are working as director managers in different top-notch companies in outside India as well as in India also. And many of them opted for higher education in California, Chicago, Germany, etc. Our today's guest, right now I will say guest because he has given some time, valuable time. Shubhayu Malik is the member of 2017 batch pass out from UEM Jaipur. He is now the senior engineer, design in renewable section, Tata Consultancy Consulting Engineer Limited. He is a former employee of Infosys. AmTech he has done from Jadavpur University after completing BTech from UEM Jaipur. He is a researcher, renewable energy, electrical vehicles, and waste management of solar modules. And Shubhayu, what to say, but definitely now it's your turn to talk to students and motivate them at this time. So I'll request you to please share whatsoever the experience you have and how our students can be more beneficial with your talk. You kindly take on. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Vishwajay, sir. Thank you, Rahul, sir. Am I audible right now, sir? Yes, yes, definitely. Okay, sir. So, first of all, guys, hello, guys. This is Shubhai Malik. I am completed my BTech from UVN Jaipur in mechanical background. Hello. Hello. Yes, you I'm are completed audible. my yes, sir. You are audible. I'm You com- are audible. No, no, the thing is that the Wi-Fi is something is problem. Wi-Fi में थोड़ा कुछ problem हो रहा है सर. हाँ, ठीक है. So I have completed my BTech in mechanical engineering from UVM Jaipur, and I passed out in 2017. But the thing is that UVM Jaipur is just like the family of me. It's just like is not a educational institution. Not just it's not just a course. It's not just it's not just mechanical engineering. It's beyond that. It's more than any engineering. It's more than anything. So after completing my higher secondary, I'm the single child in my home, and मतलब होता है ना मम्मी पापा का लाडला जैसा फीलिंग्स था मेरा. उसके बाद बहुत हार्ड फीलिंग था, मतलब मेरे मम्मी पापा के पास जो इधर से घर से बहुत दूर, फार अवे फ्रॉम कोलकाता, इट्स 1500 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता. एंड आई वेंट देयर इन यूएम जयपुर. यू नो टू एडजस्ट देयर आई जस्ट नीड ओनली 1 to 2 week. उसके बाद जो बॉन्डिंग हो गया था ना, वो बहुत बहुत अलग, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ था, बहुत गजब का चीज़ होता है. फिर क्या होता है, आप लोग का एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि सबको मतलब इजी होगा, क्योंकि हिंदी इज मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश बिकॉज इट्स नॉट ए एजुकेशनल टॉक, इट्स जस्ट interactions. The thing is that you know to gain the success from UVM Jaipur, it's really easy than other institutions. I'm going to tell you the formula. जो हमारे फैकल्टी बोलते जाए वो करते रहो, और कुछ नहीं करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए. मैं बहुत इजी होता है ये चीज़. सिर्फ डेली क्लास जाओ, क्लास के बाद आके डेली के असाइनमेंट और डेली जो पढ़ाई होता है वो पढ़ते रहो, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए. ये अगर तुम करते रहोगे तो एग्ज़ाम के पहले तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करना होगा. यू नो एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करना होगा, और एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट भी आएगा. और इन यूवीएम जयपुर they are really specialized in placement training. There is, and during placement training, they used to nourish your technical part, they used to nourish your aptitude part. और इन दोनों वजह से ना तुम्हारा जो गेट का या फिर एमटेक का जो भी एंट्रेंस रहेगा, वो भी तुम्हारा बहुत अच्छा नर्चर होता रहेगा,
और तुम्हारा कैट का अगर प्रिपरेशन लो या फिर गवर्नमेंट का कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन लो, वो भी तुम लोग का नर्चर होता रहेगा। तो और तुम्हें वो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे सर लोग ये नहीं बताएंगे कि आज हम लोग गेट के लिए पढ़ाएंगे, आज हम लोग कैट के लिए पढ़ाएंगे, ये सब नहीं होता। अब सर आपको सब पढ़ाते रहेंगे और तुम खुद ब खुद ना वो प्रिपरेशन चलते रहोगे। कभी कभी ये लगता है, हम लोग क्या करते थे, 4:30-5 बजे हम लोग हॉस्टल वापस आते, फिर क्या करते हैं, कुछ फुटबॉल वगैरह कोई खेलने जाता था, कोई जिम वगैरह जाता था, कोई हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं, टेबल टेनिस खेलने जाते हैं। और आफ्टर दिस थिंग्स और माय फ्रेंड इज देयर, अनुनय देयर, एंड आफ्टर दैट शाम को 6 बजे 5:30 बजे आप सिर्फ 8 बजे तक, 9 बजे तक या 10 बजे तक डेली का असाइनमेंट, डेली का जो क्लास का जो पढ़ाई है वो पढ़ते रहो। वो पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में आप होता है ना जो हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन में तुम्हारा पढ़ाई होता रहेगा। फिर डेली पढ़ते रहो, और उसके पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते थे, फीफा वगैरह खेलते थे या फिर डिनर विनर करके सो जाते थे। यही हम लोग का डेली रूटीन हुआ रहता था। क्या मतलब, अगर तुम डेली पढ़ोगे तो एग्जाम के पहले वो जो हेडेक होता है ना, वो नहीं रहता। और एक बात मैं क्लियर करके बोल दूं, जो हम लोग फेसबुक में मीम्स पर देखते हैं ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग कॉलेज एग्जाम के पहले दिन पढ़ते हैं या फिर एग्जाम के एक हफ्ते पहले पढ़ते थे, उसमें तुम पास हो जाओगे या फिर उसमें तुम 80% भी ला सकोगे अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो, लेकिन तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि तुम लोग के पास ना ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप लोग आ चुके हो जहाँ पर ना सब सर एक वेल एडुकेटर के साथ एक गार्जियन होता है, एक बड़े भैया के जैसा होता है, और सबसे बढ़िया होता है तुम्हारे सक्सेस के लिए जो पाथ है, वेल ट्रेनिंग होता है तुम लोग के पास। कुछ नहीं, सिर्फ क्लास में जाना है, क्लास का जो पढ़ाई होता है वो पढ़ाई करना है, डेली का असाइनमेंट डेली करना है, बस और कुछ नहीं। अगर तुम ये करते रहोगे, देयर आई कैन अश्योर यू डायरेक्टली दैट यू विल गेट अ प्लेसमेंट ऑन द 4th ईयर फैंटास्टिकली। वो तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको 4th ईयर का प्लेसमेंट। उसके बाद तुम अगर हायर एजुकेशन करना है वो करते रहो। अगर तुम लोग को ऐसे कुछ MBA करना है या फिर जो भी करना है, वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो प्रिपरेशन, तुम्हारा जो वो जो होता है ना, मतलब फाउंडेशन जो होता है ना सिविल में जो होता है, वो चलता रहे, 4 साल चलता रहे। ये पहले बात। अब मैं मेरे बात में आता हूँ। तो इधर से हम लोग गए UVM जयपुर, फिर फर्स्ट ईयर में जाके 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोस्त लोग बन गए, फिर फुटबॉल वगैरह स्टार्ट हो गया, क्रिकेट वगैरह स्टार्ट हो गया, डेली क्लासेस स्टार्ट हो गया, तो हमारा मन लग गया। फिर क्या हुआ था ना, हम लोग पहले सोचते थे, क्योंकि बहुत लोग के जैसा हम भी सोचते थे कि चलो हमको गेट के लिए प्रिपरेशन करना है, चलो हमको कैट के लिए प्रिपरेशन करना है, क्या करेंगे, इतना पढ़ाई है, इतना प्रेशर है, हम लोग पहले सोचते थे। फिर क्या हुआ ना, कुछ ही दिन बाद या फिर कुछ ही हफ्ते बाद हम लोग उधर में एडजस्ट हो गए, खाना भी बढ़िया मिलता था, सब कुछ अच्छा होता था, हम लोग उधर एडजस्ट हो गए। तो चलो ठीक है, हम लोग कॉलेज का पढ़ाई चलो करते रहते। मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होता है 4th ईयर में जाके 3rd ईयर में जाके प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग लेते हैं अलग सा कोई भी इंस्टीट्यूशन में। हम लोग को ट्रेनिंग उधर से दिया गया था, इंटेलिमाइंस हो या क्या नाम होता है, हाँ, 3-4 कंपनी के साथ टाई अप करके हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया था। कोलकाता में ट्रेनिंग दिया गया था, राजस्थान में जयपुर में भी ट्रेनिंग दिया गया था, तो कॉलेज की तरफ से दिया गया था। अलग बहुत सारे कॉलेज में ये बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं जो घर पे ट्रेनिंग लेते हैं, हम लोग को कोई भी अलग से ट्रेनिंग लिया नहीं लगा था। और क्या होता ना, सभी लोग कॉलेज से प्लेस्ड हो गया था, इस मेजॉरिटी। और मैं ये बात ये नहीं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जहाँ पर हो ना, आपको ज़्यादा एफर्ट देना चाहिए, सिर्फ कॉलेज के जो हमारे जो फैकल्टीज के उसके रास्ते पे चलते रहो। यही मेरा मतलब, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, क्योंकि मेरे अगर बहुत लोग स्टूडेंट बोलते हैं कि दिन में 4 घंटा पढ़ाई करो, दिन में 5 घंटा पढ़ाई करो, ये बुक फॉलो करो, वो बुक फॉलो करो, ये करो, वो करो, है करो, ये सब कुछ नहीं करना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, सब कुछ नहीं करना होगा। आप अगर MTech चाहते हो, आप अगर MBA चाहते हो, जो भी हो, क्योंकि हमारे बैच में से कल आएगा आप लोगों का एक भैया आएगा, सम्राट पटनायक, वो आज मतलब बहुत बड़ा जगह पर पहुंच गया। फिर मेरा फिर MTech का एंट्रेंस जो होता है जादवपुर में, मैं जॉब कर रहा था, वापस आया, MTech को एंट्रेंस दिया था हम लोग। मैं कुछ गेट का प्रिपरेशन में नहीं लिया था, मैं कुछ भी नहीं किया था, मैं MTech का एंट्रेंस दिया, मेरा सिलेक्ट भी हो गया। मेरे और एक भैया आप इधर देख भी रहे, अनुनय देवरा नाम का, वो अब पावर ग्रिड में है। वो सब लोग क्या था, 4 साल का कॉलेज का जो पढ़ाई है UVM जयपुर,
वो सिर्फ हम लोग डेली क्लास जाते थे और डेली का पढ़ाई डेली करते थे। दिस इज द मेन थिंग। और हमारे कॉलेज पे अभी मतलब हम लोग जो थर्ड ईयर फोर्थ में हम लोग जो कहते तब नए नए थे कॉलेज, अभी जो यूनिवर्सिटी का बहुत सारे मतलब विश्वजय सर के साथ मतलब बहुत इनोवेशंस हो रहे हैं। आप जब लोग जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आप लोगों का एक शोपान नाम का एक भैया है, फिर आकाश दुबे है, बहुत सारे लोग आदमी, बहुत सारे सर हैं, हम लोग के जो भी सर लोग हैं, इतना रिसर्च वर्क हो रहा है, इतना एक्स्ट्रा करिकुलर में इतना रिसर्च वर्क होता है, एनपीटीएल का प्रोग्राम हो रहा है, इतना ज़्यादा आप लोगों का वास्ट जो प्रोग्राम्स मिल रहा है ना, ये बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए इतना हेल्पफुल रहेगा। आप सिर्फ करते जाओ, वो ज़्यादा। और एक चीज़ होता है कि थोड़ा एक दिन कॉलेज का पढ़ाई करना, वो कॉलेज मतलब कॉलेज गए, कॉलेज के क्लास से आ गए, वापस आ गए, फिर हॉस्टल में आके भूल गए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब वो खबरदार नहीं करना चाहिए। सबसे बढ़िया है अगर सक्सेस के लिए जाना हो या फिर सक्सेस के बारे में मत सोचो, मतलब जो भी मतलब एक रूटीन बनाना जो भी है वो सबसे बढ़िया होता है। क्लास में जाओ डेली, क्लास से वापस आओ, क्लास से वापस आने के बाद डेली का पढ़ाई डेली करते रहो और कुछ नहीं चाहिए। मतलब रात को 2 बजे तक पढ़ाई, 3 बजे तक पढ़ाई, 4 बजे तक पढ़ाई, एकदम नहीं। रात होता है सोने के लिए, हॉस्टल में गए हो, उसका मजा भी उठाना है। खेलने जाओ, टेबल टेनिस खेलो, फीफा खेलो, वो भी करना है। नहीं तो 4 साल का हॉस्टल लाइफ का कुछ वो नहीं होता। सो और मेरे बारे में अगर बताओ तो फोर्थ ईयर में रहते मेरे हम लोग के पास फर्स्ट जो कंपनी आया था, इन्फोसिस आया था, उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद मैं इन्फोसिस गया, इन्फोसिस जाने के बाद उधर मैं 6 महीने रहा। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग 6 months इन इन्फोसिस आई लेफ्ट द जॉब एंड आई डिड द entrance of Jadavpur, and right now I'm going to join as a senior engineer in design renewable department in Tata Consulting Engineers. So मैं कुछ मतलब मैं शो ऑफ नहीं करूँगा, मैं से यही बोल रहा मेरा जो एमटेक का एंट्रेंस के लिए मैं 1,70,000 रुपये ऐसे कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ मेडिजी में या फिर कुछ भी नहीं। मैं यही बोलूँगा कि अगर हम लोग का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, सीएससी डिपार्टमेंट, सबका फैकल्टीज लोग इतना बढ़िया है। पीके सर बहुत मतलब भगवान है फिजिक्स का। अगर सर लोगों के पास अगर रहो, और क्या होता है सबसे बढ़िया चीज़ है, ये नहीं है कि बाकी कॉलेज के जैसे कि अगर तुम 5 बजे तक सर के पास रहोगे, क्लास के बाद होगे, वो सर नहीं है, ये नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा जब डाउट होता था रात को 11 बजे, 11:30 पे हम लोग गए थे सर लोगों के पास। 11 बजे, 11:30 पे गए थे हम लोग सर लोग के पास। तो सर मुझे डाउट है, मुझे पढ़ाना है। सर लोग हमने मतलब हॉस्टल में एक भैया के जैसे होता है, एक गार्जियन के जैसे होता है। जब भी हम लोग का कुछ प्रॉब्लम होता है हम लोग जाते थे, और उसका जो मतलब हेल्प हमें कभी मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकूँगा। और एनी क्वेश्चंस, क्योंकि जो आई एम रियली ईगर टू इंटरेक्ट विथ यू गाइस। एनी क्वेश्चंस? हाँ शुभायु। हाँ हाँ सर। हाँ मैं बोलूँगा, जब आप फर्स्ट टाइम कैंपस में आए हाँ सर। after your 10+2, so there were some expectation from the university and the staff members and the colleagues, means your classmates. So how you encounter those expectations, means क्या वो सारा पूरा हुआ, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला जैसा आप सोच के आए थे? और अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही चीज़ फेस कर रहे हैं कि अगर वो कैंपस में आते हैं तो किस तरह का एनवायरनमेंट रहेगा, उस पर आप थोड़ा सा बच्चों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा आप गाइड करें। अगर हम लोग मतलब क्या होता है ना, जब घर से उधर जाते हैं तो हम लोग 10+2 में हम लोग बहुत बच्चे होते हैं। आप लोग जैसे हो, मेरे मतलब भाई के जैसे हो, सब भाई बहन के जैसे हो। तब क्या होता है, हम जहाँ भी जाते हैं हम घर चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बोलता हूँ कि अगर पहले अब आप जाते हो ना, जब हॉस्टल में जाते हो, देखते ये घर नहीं है, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद तुम घर को मिस करना छोड़ दो। वैकेशन के आने के टाइम तुम हॉस्टल को मिस करोगे। एंड आई कैन say one thing, right now is 2020, I left UM Jaipur on 2017, still now I am missing the hostel. तो अब पहले दिन हम लोग जब रात को गए थे, दीप्तो सर थे, बहुत सर थे, वो हम लोग को जो है रूम दिखा दिए, फिर बेड दिखा दिए, टेबल्स थे, अलमीरा थे, सब दिखा दिए।
पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद जब वो फुटबॉल ग्राउंड, जब वो क्रिकेट ग्राउंड, जब वो लैब वगैरह, फिर वाईफाई, ये सब दिखने में मिल जाएगा ना, और सबसे बढ़िया है दोस्त लोग, उसके बाद एडजस्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत मजा आता है। और द थिंग इज दैट दैट इज मतलब घर अब भूल जाओगे, यही थिंग है। क्योंकि अभी भी मेरा मम्मी बोलते हैं कि अरे क्या हॉस्टल में जैसे सोच रहे हो, हॉस्टल के जैसे सोच रहे हो, क्योंकि अभी भी हम मतलब यूएम जयपुर हमारे अंदर से अभी तक नहीं गया है। ये होना है कि मतलब दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। यू आर रियली ब्लेस्ड कि अभी हॉस्टल के फैसिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, वाईफाई आ चुका है, एनपीटीएल का प्रोग्राम आ चुका है, बहुत शेड्यूल्ड हो चुका है। क्योंकि मैं गारंटीड कर सकता हूँ कि अगर 4 साल जो हॉस्टल का जो आप लाइफ लीड करोगे ना, मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। ये पहले बात। सेकेंड बात वो है कि हॉस्टल का लाइफ सिर्फ तुम्हें पढ़ाई नहीं सिखाता। अगर 4 साल तुम हॉस्टल में रह जाओगे तो सारी जिंदगी में जो भी सिचुएशन आएगा उसका फेस करने का दम तुम्हें आ जाएगा। हॉस्टल तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। इट्स जस्ट लाइक बियॉन्ड एनी ट्यूटोरियल थिंग, बियॉन्ड एनी टेक्निकल थिंग, बियॉन्ड एनी एकेडमिक थिंग। हॉस्टल लाइफ इज जस्ट लाइक ए फिलोसफी। मतलब 4 साल इतना मतलब इट्स जस्ट लाइक अ जेम ऑफ योर लाइफ। स्टिल नाउ हमारे जो भी दोस्त लोग होते हैं हर दिन बात करते हैं और कहते हैं कि याद है पहले दिन, याद है आखिरी दिन, याद है सेकेंड ईयर का दिवाली, याद है वो, याद है ये एग्जाम के टाइम। मतलब आप लोग जाने वाले हॉस्टल, इसलिए मैं अभी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मैं मतलब नॉस्टैल्जिया में चला गया हूँ क्योंकि क्या होने वाला है। मतलब मेरा जो याद आने वाला है सब कुछ अच्छी। मतलब हॉस्टल का जो लाइफ होता है ये अलग होता है। मतलब ऐसे मत सोचो कि हॉस्टल के साथ घर को कंपेयर करो। पहले 7 दिन, पहले 8 दिन आपको लगेगा घर अच्छा होता है, फिर आपका जो 4 साल यही लगेगा कि हॉस्टल खत्म ही ना हो, चलो हॉस्टल में रहते हैं। और हॉस्टल खत्म होने के जोश में ऐसे ना तो बैकलॉग लगा लो, ऐसे मत करो। क्योंकि हॉस्टल का जो लाइफ है ये कभी भी आप लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जब वैकेशन में घर पे भैया यू आर म्यूटेड। भैया यू आर म्यूटेड। hello, no, basically I'm not muted. I think that Wi-Fi is going to be any problem. Hello, am I Yes, audible right हाँ now? you are audible. It's okay. Yes, yes. कब से सुनाई नहीं दिया तो। हिमांशु, आर यू न्यू स्टूडेंट? Yes, yes भैया। ओके ओके। अच्छा, कब से सुना, कितने सेकंड में सुनाई नहीं दिया, ये बोल सकोगे मुझे? 6-7 सेकेंड। आज सेकंड ओके 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 ओके। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। मतलब मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछो, मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। भैया हेलो, तुमने हेलो हाँ हाँ बोलो, हेलो हाँ बोलो। भैया तुमने जब 7-8 दिन जो पहले गया था वो 7-8 दिन कैसा लगा आपको? मतलब कैसे बीता वो 7-8 दिन? देखो जब आप घर से जाते हो तो पहले 3-4 दिन, 7-8 दिन थोड़ा मम्मी पापा का याद आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फिर क्या हुआ तक सेकेंड दिन हम लोग तब ना प्रोसेस में रहते थे। सुबह उठो, ठीक है, सुबह उठो, सुबह में ब्रेकफास्ट करने जाओ। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, आफ्टर 10+2 के जो 1 महीने 2 महीने की छुट्टी होता है, अभी तो तुम लोग का बहुत महीने की छुट्टी हो चुका है इस कोविड पैंडेमिक के लिए। तो हम लोग का क्या होता है ना, जो रूटीन होता है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर उधर जाके सुबह उठो, ब्रेकफास्ट में जाओ, फिर बाथरूम में जाओ, फिर प्रिपरेशन लो, उसके बाद कॉलेज में जाओ। तो पहले पहले क्या होता था, मुझे रोबोटिक लगता था 2 से 3 दिन। फिर आप लोगों का, सब लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखे हो ना, तो उधर बोला था ना कि 21 दिन के बाद तुम एडजस्ट हो जाओगे। तो इधर 21 दिन में लगता है, नहीं लगता है, 1 हफ्ते लगता है। क्योंकि मतलब दोस्त लोग होना रहता है ना। तो पहले 3-4 दिन या फिर 5-6 दिन थोड़ा मम्मी पापा की याद आता है। उसके बाद इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक जर्नी ऑफ योर लाइफ। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों का क्या एस्पिरेशन है? हिमांशु, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, आप बोलो आपका क्या एस्पिरेशन है आफ्टर डूइंग बीटेक?
क्या बोलूं, अभी हमारा तो एक अच्छा हुआ कि हेलो 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 ये क्या हुआ? Both of you are audible. Both of you are audible. But I think I'm not visible right now. Sorry. Hello. Yes, Shivayu, you are not visible, but you are audible. You are not visible, but you are audible. Yeah, Himanshu, you continue with your question. Himanshu? Hello, am I In the visible right now, meantime, sir? yes, Shubhai. Okay. Yes. Yeah. In the meantime, any other students want to ask anything? Kindly go ahead. Yes, sir, I want. हेलो भैया। हेलो हेलो हेलो। आप बोलो बोलो हाँ, क्या मैं भी आपके तरह ही कोलकाता से यूएम जयपुर ज्वाइन किया बीबीए को अच्छा लेके। अच्छा तो मैं तो पहले बहुत ही एक्साइटेड था कि क्योंकि मेरा दो दोस्त ऑलरेडी यूएम जयपुर में है जो इसी में इंजीनियरिंग कर रहा है। पर क्या आप थोड़ा एडवाइस दे सकते हैं सीनियर लोगों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे मिलजुल के रहना चाहिए? क्योंकि यार मुझे वही रहना है और मुझे ये पता है कि बहुत ही मेमोरीज आएगा क्योंकि मेरा दीदी ऑलरेडी हॉस्टल में है, इसलिए क्या आप थोड़ा एडवाइस दे सकते हैं? द थिंग इज दैट मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक दिन के लिए भी सीनियर लोग के साथ इंटरेक्शन का मुझे ये नहीं लगा कि ये सीनियर लोग है, ये हम लोग को रैगिंग करने वाला है या फिर ये हम लोग के ऊपर डोमिनेशन करने वाला है। अभी भी अगर हम लोग आप लोग अगर मुझे फेसबुक में फॉलो करोगे तो हमारे जो सीनियर्स है, मतलब नेक्स्ट वीक अनिंदोदा आएगा आप लोग के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। अभी भी महीने में एक बार अगर बात होता है ना तो 1 घंटे बात हो जाता है, 1.5 घंटे बात हो जाता है। फिर आदित्योदा है जो खुद का स्टार्टअप है जिन लोगों का, देवारगु बोक्शिदा है, बहुत सारे सीनियर्स हैं। हम लोग का जो सुपर सीनियर है अनुप्रिया दी है, वो मैंने शी इज राइट नाउ इन स्वीडन, स्टॉकहोम में है। तो सीनियर लोग इतना हेल्पफुल होता है कि आपका अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सीनियर लोग के पास जाओ, रात को 1 बजे जाओ, 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, जो भी हो। तो ऐसा नहीं है हम लोग सीनियर के पास जाते थे कि भैया थोड़ा खत्म हो जाएगा पैसा, वो पॉकेट मनी, एटीएम नहीं चल रहा है या फिर कार्ड में नहीं है, आप थोड़ा पैसे दो। आपको नोट्स चाहिए, सीनियर लोग के पास में जाओ। फुटबॉल खेलना है, सीनियर लोग के पास में जाओ। मतलब हम लोग सब एक साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे हॉस्टल में। अलग हॉस्टल रहता था लेकिन हर वक्त हम लोग मतलब पर्सनल डाउट और एकेडमिक डाउट सभी लोग सीनियर लोग के पास जाते थे। सीनियर लोग इतना बढ़िया होता है, और अगर आप जब सीनियर हो जाओगे आपका भी वही कल्चर फॉलो होता रहेगा। यही बहुत बढ़िया बात है कि मेरे भी जूनियर लोगों के साथ स्टिल कांटेक्ट है। कि बाकी कॉलेज में क्या होता है पता है, क्योंकि बाकी कॉलेज में स्पेशली जो कोलकाता का जो कॉलेज होता है जहाँ पर हम लोग डे स्कॉलर रहते हैं, तो खुद का एक फ्रेंड सर्कल रहता है 5 से 6 लोग का। तो शायद कॉलेज पास आउट होने के बाद उन लोगों के साथ ही कांटेक्ट रहता है। मेरे साथ जादवपुर में मैं भी पढ़ता हूँ तो वही बात है, क्योंकि मेरे खुद का बैच है, उन लोगों के साथ ही कांटेक्ट रहता था आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमटेक। द थिंग इज दैट उधर क्या होता है ना, मेरे सुपर सीनियर जो 2 साल का जो बड़ा है, फिर मेरा जो सुपर जूनियर होता है, क्योंकि जब हम लोग 4th ईयर में थे, जो लोग 1st ईयर में हैं, आप मतलब जो रिश्मिता नाम का एक लड़की है, फिर अंकुर, बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोग पास आउट हो चुके हैं, उसके बाद भी जो लोग 1st ईयर में आए उन लोगों के साथ भी हम लोगों का कॉन्टैक्ट है, जब हम लोग कॉन्वोकेशन में जाके जो मिले थे। तो सीनियर जूनियर का जो रिलेशनशिप जो आपको यूवीएम जयपुर में मिलेगा वो कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं, क्योंकि ये खुद का ही भैया होता है, खुद का ही भैया होता है। और हम लोग सभी मतलब इतना अटैचमेंट होता है, मतलब दैट इज मोर देन अ फैमिली, दिस इज मोर देन अ फैमिली। सभी चीज़ में हम लोग जो भी कल्चर प्रोग्राम होता है एक साथ कंडक्ट करते थे। फिर अब मैं फेस्ट में जाता था फीफा खेलने में, बहुत सारे कॉलेज में कुछ लोग फेस्ट में जाते थे बैडमिंटन खेलने, फुटबॉल खेलने। जो फुटबॉल का टीम होता है, फीफा का टीम होता है, काउंटर स्ट्राइक का टीम होता है, क्योंकि हमारे कॉलेज में सभी चीज़ में बहुत नरिश किया जाता है। हम लोग का एक दोस्त है जो चेस में राजस्थान में शायद 18 या 20 जो भी कंपटीशन हुआ था सब में चैंपियन हुआ था, जो इंटर कॉलेज का जो भी हुआ था। फिर टेक्स फेस्ट में होता है, अभी आप लोग का इसी में शोपांदा रहेगा, उतना इतना सारा मतलब गैजेट्स बनाते हैं, सीनियर लोग के साथ बनाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है। मतलब मैं सीनियर का हम लोग के ऊपर जो भी
इंस्पिरेशन रहा है ना, वो कभी भूलूंगा भी नहीं। और सीनियर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नोट्स दे दो या फिर थोड़ा पढ़ाई का दो डाउट सॉल्व, ये भी नहीं है। मतलब सीनियर, अभी हम लोग को सीनियर जो भी हम लोग के साथ, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट है, बहुत सारे भैया लोग का कांटेक्ट है, वो मोर देन अ ओन ब्रदर, दे आर मोर देन, दे आर नॉट मोर बट दे आर मोर देन अ फैमिली। दे आर, मतलब यूएम जयपुर एक अलग सा फिलोसफी है, बोला यूएम जयपुर अलग सा फिलोसफी है। उसका जो जो वो होता है ना, सीनियर के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो अलग ही होता है। तो आप सीनियर के बारे में एकदम मत टेंशन लीजिए। और आपका, आप बोले आपका जो खुद का दीदी भी है, सो दैट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस विद योर सीनियर्स। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर योर आंसर। हेलो शुभायु भैया। हाँ हेलो। भैया मेरा क्वेश्चन है कि जब आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम आए होंगे, आपके भी कुछ गोल्स रहे होंगे, तो अगर जब आप आपको कभी ऐसा लगा कि हाँ यूईएम में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो आपके गोल्स को पूरा करने में हेल्प मिली हो, कभी भी आपके मन में ऐसा आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, ऐसा कभी भी मन में नहीं है, कभी भी मन में नहीं है। क्योंकि देखो, जब आप कोई कॉलेज में जाते हो, टेक्निकल कॉलेज में जाते हो, मेरे जो गोल्स थे, क्या मेरे गोल्स थे कि कुछ अच्छा रिजल्ट करना है। अच्छा रिजल्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली अच्छा नौकरी लगेगा। क्योंकि विश्वजय सर के साथ हमारा जब पहली बार इंटरेक्शन हुआ था, वही बात है कि अगर अच्छा पढ़ाई करोगे तो आपका अच्छा नौकरी लगेगा ही लगेगा। अगर आप हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो या फिर एमबीए करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसके लिए भी सिर्फ एक ही काम है, 4 साल अच्छे से पढ़ाई करना और सिस्टमेटिकली पढ़ाई करना। ये नहीं कि कॉलेज के मतलब एग्जाम के पहले एक हफ्ते मतलब 3 बजे तक जाके पढ़ाई करो, ये नहीं, ये बात नहीं। और मेरा गोल यही था कि, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में यही रहते थे, क्योंकि क्लास ठीक तरीके से नहीं होते, लैब ठीक तरीके से नहीं होते, वाईफाई ठीक तरीके से नहीं रहता है। तो अगर ये सब फैसिलिटी नहीं मिलता है, जो फैसिलिटीज मेन होता है, सबसे मेन फैसिलिटी होता है फैकल्टी, और एक फैसिलिटीज रखता है जो लैब होता है। और ये तो अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तब तुम्हें प्रॉब्लम होता है। और हम लोग का जो लैब है वो फैंटास्टिक है। मैं मैकेनिकल का लैब तो बहुत बढ़िया है। बाकी जो मेरे दोस्त लोग अलग से जो भी लैब में थे, सभी मतलब बहुत, मतलब क्या, हमारे एक दोस्त लोग है आकाश दुबे नाम का, मेरे की दोस्त है, हम लोग बैचमेट है, वो तो अभी भी सब लोग अटैचमेंट है। वो इतना लगाव था लैब से, और रात को 1 बजे तक 2 बजे तक वर्कशॉप में ही रहता था। फिर वो सब लोग मिलकर गाड़ी बनाया था, गो कार्ट कंपटीशन में गया था, बाहर से कंपटीशन में जाता था। जो गोल्स होता है तुम्हें सीखना और एक अच्छा इंजीनियर बनना, और उसके बाद आप अगर एमटेक करना, मेरा खुद का मतलब मेरा अभी पैशन है, आफ्टर कम 3 इयर्स या 4 इयर्स का जॉब के बाद मैं पीएचडी करना चाहूँगा, फिर आके टीचिंग के लाइन में जाऊँगा, ये मेरा गोल है। फिर अनिंदोदा भी आएगा नेक्स्ट वीक, उनका भी यही गोल है कि पीएचडी करने के बाद टीचिंग में जाने के लिए। तो सुनो, मतलब फैसिलिटीज़ क्या होता है, फैसिलिटीज़ मेन होता है तुम्हारा क्लासेस, तुम्हारा गुड फैकल्टीज एंड गुड लैब, ये 3 तुम लोगों का मेन होता है। उसके साथ होता है तुम्हारा वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो भी है, बहुत अच्छा है। हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है, मेन खाना बहुत अच्छा है। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे हॉस्टल में जाओ, उसका क्या होता है, दाल होता है पानी और कुछ नहीं रहता है, चावल होता है इतना मोटा मोटा। क्योंकि मुझे पता है इधर उधर जो भी हॉस्टल के जो भी मेरे दोस्त लोग इधर पे हॉस्टल में रहते हैं, और हमारा खाना इतना बढ़िया होता है, इतना हाइजीन होता है। और तुम अगर रूटीन मेंटेन करके कॉलेज का खाना खाते रहोगे तो तुम्हारा कभी मतलब पेट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम्हारे, मतलब वो भी बहुत मेन है। अगर हाइजीन वाला फूड तो तुम्हारे फिजिक के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और वो अगर तुम मेंटेन करोगे तो तुम्हारा पढ़ाई भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं आई कैन एश्योर वन थिंग कि मुझे कुछ फैसिलिटीज की कमी नहीं हुआ। एनीथिंग मोर? हेलो हेलो। हेलो सर। हाँ, हेलो सर। डोंट कॉल मी सर, आई एम योर भैया। भाई भैया भाई ऐसे भैया बोल। हाँ हाँ। भैया सॉरी हम्म, भैया। भैया मैं ऐसे हम्म। पूछ रहा था कि बीबीए के बाद में एमबीए करे तो कौन सा स्कोर ले, एचआर ले या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ले या मार्केटिंग सेल्स? गोल आप अभी क्या कर रहे हो? आपका बीबीए फर्स्ट अभी ईयर। बीबीए फर्स्ट ईयर बीबीए। हो ना? देखो, अगर 3 साल के बीबीए के बाद जो सेकेंडरी जो पढ़ाई होता है, जो मतलब हायर एजुकेशन जो रहता है, वो ना 2 चीज से बनता है। मैं आपको बोल सकता हूँ 2 चीज से बनता है। एक होता है
खुद का इंटरेस्ट, और एक होता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन व्हाट इज द डोमेन ऑफ योर जॉब। सोचो अगर तुम बीबीए करने के बाद कुछ मार्केटिंग सेक्टर में आपको जॉब लगे, देन मतलब आप 1 साल या फिर 2 साल जॉब करने के बाद एमबीए करो मार्केटिंग। अगर आपको एचआर सेक्शन में जॉब लगे तो प्रोफेशनली वही अच्छा होता है। देन 1 साल या फिर 2 साल कंप्लीट करने के बाद आप एचआर के ऊपर एमबीए करो। ये होता है पहला। और है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसमें मतलब तुम्हें आता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों का मैकेनिकल में जो अभी आईटी के फील्ड में बहुत उम्दा प्रेजेंट मतलब सिचुएशन में, बहुत अच्छा सिचुएशन में, उन लोगों का जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द बीटेक व्हेन दे जॉइंड कैपजेमिनी, व्हेन दे जॉइंड सीटीएस, व्हेन दे जॉइंड टीसीएस, दे गॉट इंटरेस्ट ऑन दैट। सो थिंक इज दैट आपका जो खुद का जो इंटरेस्ट 3 साल के पढ़ाई के बाद आएगा। आपका मतलब बीबीए में सभी जो डोमेन है अब तो सब मतलब आपको सब कवर किया जाएगा। तो सभी डोमेन कवर करने के बाद आपका खुद का जो इंटरेस्ट में जिस डोमेन में आएगा उसमें पढ़ाई करें, क्योंकि आपको उसमें ना रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि मेरा शौक था एनर्जी के ऊपर पढ़ना, मेरा शौक था रिन्यूएबल के ऊपर पढ़ना, इसलिए मैं जादवपुर में इसी चीज़ की तरफ गया। क्योंकि मैं मैकेनिकल भी बहुत सारे डोमेन होता है, मशीन डिज़ाइन होता है, हीट एंड थर्मल होता है, बहुत सारे कुछ होता है। क्योंकि मेरा डोमेन था, क्योंकि मेरा पायनियर का प्रोजेक्ट भी था सोलर के ऊपर, सोलर ट्रैकर के ऊपर था मैं। तो मेरा तब से मतलब मेरा वो जो मेरा वे ऑफ इंटरेस्ट था कि मुझे सोलर, विंड या फिर रिन्यूएबल के सेक्शन में ही जाना है। तो आप अगर खुद के इंटरेस्ट के ऊपर जाओगे तो आपका मतलब क्या होता है ना, वो मजा आएगा पढ़ने के लिए, और पढ़ाई नहीं रहेगा। दैट इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक एन फिलर एडवेंचर कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। पढ़ाई करने में मजा भी आता है। सो आप अगर बीबीए कंप्लीट करो, बीबीए कंप्लीट करने के बाद आप खुद सोचना कि आपका वे ऑफ इंटरेस्ट डोमेन किस तरह का, फाइनेंस आपका हो सकता है, आपका मार्केटिंग हो सकता है, आपका एचआर हो सकता है, जो भी हो सकता है। उसके बाद उसके ऊपर एमबीए कर सकते हो, या फिर जो प्रोफेशनली जो अच्छा है मतलब फ्यूचर के लिए जो अच्छा है, आपका बीबीए करने के बाद कुछ जॉब मिलेगा कॉलेज से, जॉब आपका जो मतलब जॉब जो लगेगा। सोचो आपका जॉब लगा कुछ आईटी में जॉब लगा, सोचो आपका जॉब लगा मार्केटिंग में जॉब लगा, देन ऑफ फॉर द मार्केटिंग एमबीए, तो उसका आपका जो सीवी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इसका जो नेक्स्ट जॉब होगा उसका जो हाइक मिलेगा सैलरी के ऊपर, उसका जो मतलब वैल्यूएशन होगा, इंक्रीमेंट लेगा, वो बहुत अच्छा है। आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि अगर तुम जिस डोमेन में 2 साल जॉब करोगे या 1 साल जॉब करोगे, उसी के ऊपर एमबीए करो, तो दैट विल गोइंग टू बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू हर्ष। ओके भैया, Yeah, I थैंक यू have a भैया। question. Hello. हाँ How difficult is it to get into discipline? I mean, with the goals that we have in our mind, how do we work on that along with our studies not getting hampered? And how should we get that extra time for ourselves? मैं आप लोगों को पहले एक बात चीज़ बताया था कि डिसिप्लिन जो होता है, जो रूटीन होता है, और खुद के लिए जो टाइम, वो एक ही चीज़ से बनेगा। इफ़ यू केम फ्रॉम द कॉलेज एंड जस्ट डिड योर असाइनमेंट। हेलो आदर्श ना आपका नाम? Yes, sir. आदर्श। Yes, sir. हाँ, सर मत बोलो यार, भैया बोलो यार। सर बोलने के बहुत मतलब वो वीडियो कॉल पे आदत हो गया है ना। From last couple of days, it has been. आप कहाँ से हो? I'm basically from Bihar, presently living in West Bengal. ओके थिंग सर वही बोला कि अगर खुद के लिए टाइम देखो मैं कॉलेज में रहते शॉर्ट फिल्म बनाता, आप यूट्यूब में देख सकते हो, मैं शॉर्ट फिल्म बनाता था। बहुत सारे लोग टेक्निकली जो खुद के लिए टाइम बनाते थे, गैजेट्स बनाते थे बहुत। मतलब हम लोग का एक दोस्त है राहुल नाम का, वो तो मतलब क्या होता है, वो गेट क्लियर भी कर दिया था सिविल में। गेट क्लियर करने के बाद और प्रोफेशनल सिंगिंग में चला गया और ऑल इंडिया कंपटीशन का मतलब चैंपियन भी हो चुका है। राहुल नाम का एक बहुत अच्छा दोस्त है। तो खुद के लिए जो टाइम आप एक ही चीज़ से निकाल सकते हो, कॉलेज से आओ, डेली का पढ़ाई अगर डेली करोगे तो क्या होता है ना, सोचो आज मंडे आप कॉलेज गए, आज क्या कौन सा डे, आज फ्राइडे है। अगर फ्राइडे आप कॉलेज गए, फ्राइडे के आप 8 क्लासेस किए, 7 क्लासेस किए, आप सोचे ठीक है मैं तो पढ़ाई समझ में आ गया, नेक्स्ट वीक कर लेंगे। फिर क्या होता है, जो दैट इज जस्ट लाइक प्रेसिपिटेशन, वो जमता रहेगा, एक करके पढ़ाई जमता रहेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम होता है,
अगर तुम आज जो क्लास में जाओगे उसके बाद आगे आज के पढ़ाई अगर तुम कर लोगे तो वो पढ़ाई करने के 15 मिनट टाइम लगेगा तुम्हें उसको प्रिपेयर करने के लिए। और 2 हफ्ते अगर बाद अगर सेम पढ़ाई करोगे तो उसको प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें 1.5 घंटा टाइम लगेगा। फिर अलग से क्या होता है, एड ऑन क्या होता है डिसएडवांटेज, ये जो 2 हफ्ते की पढ़ाई नहीं करने के लिए जो लेथर्जी आ जाता है उसके लिए कंसंट्रेशन भी लैक होता है। तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, 8 घंटे की पढ़ाई अगर 3 घंटे में करना चाहते हो, 2 घंटे करना चाहते हो, फिर 1.5 घंटे में करना चाहते हो, तो डेली का पढ़ाई डेली का, अगर डेली का पढ़ाई डेली कर दोगे उसके बाद क्या होगा सोचो, 4:30 बजे 5 बजे आपको कॉलेज खत्म हो जाता है। आपको वापस आने के बाद हम लोग फुटबॉल खेलने जाते हैं, मैं डेली फुटबॉल खेलने जाता था। फुटबॉल खेलने के बाद अगर 6 बजे वापस आ जाओगे तो डिनर के पहले आप अगर पढ़ाई कंप्लीट डेली की पढ़ाई डेली करो तो डिनर के पहले कंप्लीट हो जाए। आई कैन एश्योर वन थिंग, सिर्फ कंसंट्रेशन लेके और सीरियसली 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो। डेली का जो असाइनमेंट्स होता है, सर लोग डेली असाइनमेंट देते हैं, लैब का रिपोर्ट लिखना है, वो डेली लिखो। तो क्या होता है उसका टाइम बहुत कम लगता है। सोचो एक मशीन डिजाइन का कुछ थोड़ा थर्मल इंजीनियरिंग का, तो आप लोगों को कर्नल साइकिल का आज लेक्चर हुआ है, सर ने आज कर्नल साइकिल के लेक्चर पढ़ा या फिर रैंकिन साइकिल लेक्चर पढ़ा। आप अगर घर आके 2 दोस्त मिलके ग्रुप डिस्कशन कर ले, अच्छा ये होता है, वो होता है, इसमें वर्क होता है, इसमें बॉयलर रहता है, आप अगर एक बार रिवाइज कर लो ना तो वो ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन में वो हो जाता है। उसके बाद आपका 10 बजे के बाद खुद का टाइम होता है। फिर कोई लोग मतलब जो भी करना चाहते हैं, मतलब दैट इज मतलब वो जो खुद का जो टाइम होता है उसको उधर आप अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो अलग सा कुछ अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर के वो एक्सपोज करना, वो एक्सप्लोर कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात है, अगर मतलब पढ़ाई का टाइम शॉर्ट करने के लिए डेली का पढ़ाई डेली कर, अगर पढ़ाई का टाइम शॉर्ट नहीं कर मतलब डेली का पढ़ाई डेली नहीं करोगे तो वो जमता रहेगा, और जमता रहे मतलब अगर प्रेसिपिटेशन होता रहेगा ना, वो क्या होगा 2 हफ्ते बाद या फिर 3 हफ्ते बाद तो आधा घंटे की पढ़ाई करने के लिए आपको 3 घंटा टाइम लग जाएगा। मैं यही करना चाहता हूँ, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत इजी बात है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक ही काम करना है, सिर्फ डेली का पढ़ाई डेली करो, फिर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मेंटेन होता रहेगा। हाँ, रात को 3 बजे तक 4 बजे तक डेली मत जागो, हम लोग भी जाग चुके, फीफा खेलते थे, काउंटर स्ट्राइक खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे। अगर वो जागोगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। कोशिश करना 12:30 या कि 1 बजे के अंदर सो जाओ, फिर सुबह होकर ब्रेकफास्ट करो। अगर डेली का जो टाइमिंग है हम लोगों का फूड्स का कॉलेज का वो इतना बढ़िया होता है, वो अगर मेंटेन करते रहोगे आपका हेल्थ का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप अगर डेली का पढ़ाई डेली करते रहोगे तो आपका वीकेंड भी फ्री रहेगा, आप उधर फुटबॉल खेल सकते हो, आप उधर गेम्स खेल सकते हो, थोड़ा सा बाहर में उधर पूरे मोड़ जाके घूम भी आ सकते हो, या फिर लैब का रिपोर्ट बहुत मेन चीज़ होता है वो वीकेंड में लिख भी सकते हो। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। Rightfully explained, Bhaiya. Thank you so much. Have a good day. एनी मोर क्वेश्चन? एक कोई आया था, कुछ हेलो सर। हेलो अब यार सर मत बोलो यार, विजय साइनी विजय भैया और कुछ विजय सर, हाँ बोलो। भैया कैन यू टेल अबाउट द स्पोर्ट्स रूटीन ऑफ द हेलो, यूएम जयपुर? यस you are not clearly audible, Vinay. Can you please यस repeat this? भैया कैन यू टेल मी स्पोर्ट्स रूटीन ऑफ द यूएम जयपुर? व्हाट्स द रूटीन ऑफ स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स रूटीन के लिए मतलब मैं अगर बोलना सर, क्योंकि हम लोग डेली फुटबॉल खेलते थे, तो जिसका जो मतलब मेरे अगर एक्सपीरियंस के लिए बोले तो मैं कॉलेज से वापस आने के बाद भैया लोग के साथ, फिर मेरे दोस्त लोग के साथ और मेरे जूनियर लोग के साथ डेली फुटबॉल खेलने जाते हैं। शाम को 4:30 या 5 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग फुटबॉल खेलते थे। बहुत भैया लोग हैं, बहुत दोस्त लोग हैं जो क्रिकेट खेलते थे। कल एक जो आप लोग का जो भैया आएगा सम्राट पटनायक, वो बहुत बढ़िया टीटी खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, मैं भी खेलता था टीटी। तो स्पोर्ट्स का जो रूटीन होता है वो अगर आपका कौन सा स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस होता है बोलो। हेलो, कौन सा स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है विनय? भैया बैडमिंटन। बैडमिंटन ना, हाँ तो हमारे उधर तो बैडमिंटन बहुत लोग खेलते हैं ना कॉलेज में, जो स्पेशली विंटर के टाइम में शाम को लोग बैडमिंटन खेलते हैं, 5 बजे 6 बजे से डिनर के पहले टाइम तक लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स का रूटीन मतलब आप जो भी गेम खेलोगे तो आप उधर जाके तो दोस्त लोग तो मिल ही जाएगा, क्योंकि सोचो 30 लोग बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत लोग कबड्डी खेलते हैं, वॉली तो हमारे सर लोग भी खेलते हैं, यादव सर खेलते हैं, वॉली खेलते हैं। तो आपका स्पोर्ट्स रूटीन ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो हैबिट हो जाए, फिर आपको ये लगेगा कि आप अगर नहीं खेलेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा,
और अगर पढ़ाई नहीं होगा तो गेम में भी मन नहीं आएगा, तो वो रूटीन आप फिक्स हो जाए, उसके लिए चिंता मत करो। हेलो विनय, मतलब भैया आपका डाउट Yes, सॉल्व? भैया. हाँ हाँ इमाम, हाँ इमाम, आपका डाउट सॉल्व हुआ विनय? Yes, yes, भैया. ओके ओके ओके। भैया अच्छा how do you hello हाँ हाँ बोलो Yeah. बोलो हमीद। पार्ट yeah भैया how do you get into like MTech in Jadavpur University? okay just after crack the gate exam. Okay, in Jadavpur University there is another exam you have to complete that, you have to crack that, that is Jadavpur University entrance. वो होता है आपका जून के महीने में। तो मैं मतलब मैं ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था उधर, जो भी आप स्ट्रीम लेना चाहते हो तो दे आर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम यू नो फॉर। आप कौन सा ब्रांच से हो? हेलो, आप कौन सा ब्रांच से हो हमें? Mechanical. अच्छा बढ़िया है। तो मैकेनिकल का बहुत सारे उधर डोमेन होता है, वाटर रिसोर्स एंड फ्लूइड होता है, फिर आपका हीट थर्मल होता है, फिर आपका एनर्जी जो मेरा है एनर्जी। तो अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग एंट्रेंस होता है। तो आपका 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स, आपका बीटेक का मार्क्स, आपका उस एंट्रेंस का मार्क्स और आपको गेट का मार्क्स, ये पांचों चीज़ मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है। तो आप अगर मुझे ये पूछोगे कि प्रिपरेशन कैसे लिए, तो मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं लिया। जो कॉलेज का जो नोट्स वगैरह रहता है वही मैं थोड़ा टच में रहता था, जब इन्फोसिस के टाइम में भी थोड़ा टच में रहता था। फिर घर आने के बाद आप अगर डेली 10 घंटे 2.5 घंटे नहीं 4 से अगर कॉलेज पे ठीक से पढ़ोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। डेली 2 घंटे या 3 घंटे तब, या फिर 1 घंटे सिर्फ टच में रहना, जो फॉर्मूलाज है रिवाइज करना, 1-2 न्यूमेरिकल्स एक बार देख लेना, अच्छा अच्छा चलो ये याद है। दैट इज नॉट, मतलब एमटेक का एंट्रेंस जो गेट का एग्जाम क्या होता है ना, लोग कहते हैं ना गेट के एग्जाम के लिए, हाँ अगर गेट के आप पीएसयू क्रैक करना चाहते हो, अगर आप 80 मार्क्स लाना चाहते हो, 75 मार्क्स लाना चाहते हो, 90 मार्क्स चाहते हो, जो टॉपर होते हैं गेट के लिए, उसके लिए आपको प्रिपरेशन बहुत मतलब तगड़ा करना होगा। लेकिन ये जो होता है ना, जो लोग मेडिजी में जाते हैं या फिर गेट अकेडमी जाते हैं, गेट फोरम में जाते हैं, होता है 2 साल के लिए 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, फिर आता है गेट का क्लियर। वो 10 घंटा पढ़ाई तभी करना पड़ता है अगर 4 साल पर कुछ नहीं पढ़ोगे, आपका बेसिक्स अगर 0 रहेगा तभी आपको 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है तो सिर्फ गेट उतना टफ एग्जाम नहीं होता है, या फिर उतना जो भी एंट्रेंस होता है आईआईटीज का, अभी तो पीएचडी में, थोड़ा पीएचडी के लिए आईआईटी में इंटरव्यू होता है। फिर आप अगर एमएस पढ़ना जाओ फॉरेन में, बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं, लेस्टर में एक है, फिर पोलैंड में है सम्राट भैया, सम्राट भैया, बहुत सारे जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए जो भी होता है 4 साल की जो पढ़ाई, उसका बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग रहोगे तो पढ़ाई का टाइम बहुत कम रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स हो, सिर्फ फॉर्मूलाज हो, एक बार जस्ट रिवाइज करना होता है, डेली बेसिस में टच में रहता है। फिर आपका जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल पे रहोगे तो मेरा जैसे थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छा लगता था, मुझे फ्लूइड बहुत अच्छा लगता था। 2-4 का जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो 2-3 चीज़ में अगर नच्चर करता रहोगे तो एंट्रेंस का एग्जाम बहुत उम्दा रहता है। और एक चीज़, और जॉब के प्लेसमेंट के लिए मैं एक चीज़ में एक टिप्स बोल देता हूँ, क्योंकि पहले ना एक तो 4 देखो पूरा कोर्स तो पढ़ना ही होगा, फिर 2 या 3 सब्जेक्ट आपको सीवी में डालना पड़ता है कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है या फिर स्ट्रॉन्ग। तो आपको 4 साल में ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हो, फ्लूइड हो सकता है, थर्मल हो सकता है, मशीन डिज़ाइन हो सकता है, जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट, आपको ऐसे 2 या 3 सब्जेक्ट में बहुत मतलब एकदम मतलब मास्टर होना, और ये 2 चीज़ कर लो तो अगर जॉब में भी प्रॉब्लम नहीं होगा या फिर एमटेक के एंट्रेंस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। हेलो हमीद। Hello. Yes हाँ भैया I get it. ओके First, हाँ how are you? अभी मतलब घर पे हूँ और कुछ नहीं। हाउ आर यू भाई? Okay. Basically, my question is the companies which came for the placement in Union Jaipur. I think You they are not are clearly audible part. You are not clearly audible part. Can you please repeat on part? basically the companies which came to UM Jaipur for the placement purpose. They are from the engineering field, then management field. I am from management department. I think so. They are from every field, you know, from IT engineering field, from core engineering field, they are from marketing field. They are for every department. मतलब जो वो vast area cover होता है
वास्ट चीज़ें कहो। अभी तो आप लोग के बहुत सारे स्ट्रीम भी ज़्यादा हो चुके हैं, फिजियोथेरेपी है, बीबीए है, एमबीए है, मतलब अभी स्ट्रीम्स भी बहुत वास्ट हो गए। हमारे टाइम में एमबीए था तो उसके लिए भी अलग से कंपनीज आते थे, फिर बहुत सारे कंपनीज में हम भी बैठते थे, एमबीए लोग भी बैठते थे। तो कंपनीज का जो एरिया ऑफ डोमेन होता है वास्ट होता है, क्योंकि अरे कुछ ना कुछ डेली आता ही रहता था। तो फोर्थ ईयर में तुम आ गए तो मतलब पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, आज ये कंपनी, परसों वो कंपनी, फिर 2 दिन बाद वो कंपनी, ये होता रहेगा। हाँ आप बोलो, आपका कंप्लीट करो, आपका जो क्वेश्चन बोलो। थैंक यू भैया। अरे आपका अच्छा क्वेश्चन क्या भैया, था? हाँ हाँ हाँ, बोलो। आ, भैया आपके पास तो मतलब इन्फोसिस और टीसीएस दोनों का ही वर्क एक्सपीरियंस है, एंड आई बिलीव दोनों ही बल्क में। TCS Tata Consulting Engineers Limited is TCE, is a core company, is a mechanical and civil company. TCE नाम है इसका। ऑल राइट सर। हाँ तो मतलब टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही बल्क में रिक्रूट करता है स्टूडेंट्स को, तो हाँ मतलब हाँ। सैलरी तो बेसिकली कम ही देते हैं हम लोग। तो हाउ मतलब कितना टाइम लगता है उसमें प्रमोशन ऐसा कुछ के लिए? TCS के बारे में मुझे नहीं पता। इन्फोसिस का जो ट्रेनिंग होता है वो वर्ल्ड क्लास होता है। TCS के मेरे जो दोस्त लोग होता है उसका जो वर्क कल्चर, जो एटमोसफेयर होता है बहुत बढ़िया होता है। तो प्रमोशन के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है ना, प्रमोशन उसका डेली बेसिस मिलता है। आप मैंने इस ऑन योर मतलब आपका जो मतलब जॉब का जो परफॉर्मेंस उसके बेसिस में रहता है। क्या आप अगर उतना अच्छा काम नहीं करोगे तो नेचुरली उसका आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और सब जो लोग ज़्यादा जो करते हैं वो स्विच कर लेते हैं, उसमें से आपका वैल्यूएशन बढ़ता है, उसके साथ इंक्रीमेंट के। मेरे हम लोग का दोस्त है शांतनु सूद नाम का, उसका एक स्टार्टअप में नौकरी मिला था और उसका स्टार्टिंग सैलरी था 8,000 रुपीज़ का। और क्या ना, वो स्टूडेंट ठीक ठाक था, उतना बढ़िया भी नहीं था। उस सोचो 2000, मैं आई एम गोइंग टू से यू, आप जस्ट वेट कर लो, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। उसका स्टार्टिंग सैलरी था 8,000, एक स्टार्टअप में जॉब मिला था 8,000 नहीं 12,000 आई गेस सो। और बैकलॉग्स वगैरह था, वैसे कुछ था, उसलिए बहुत बड़ा कंपनी में बैठ नहीं सका, प्लेसमेंट में बैठा। राइट नाउ ही इज अर्निंग 28 lakhs पर एनम। हमारे दोस्त का दोस्त है और वो अब वॉलमार्ट में काम करता है। वो अगर स्टार्टअप में काम करता रहता तो उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं रहता, वो स्विच कर दे। अगर 6 महीने एक साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर स्विच कर लोगे तो सोचो, उसका स्टार्टिंग सैलरी था 10,000 2017 में, और अभी 2020 में आगे उसका सैलरी है 2,20,000। तो मतलब सैलरी का जो हाइक होता है वो रहता है, वो स्विच करोगे तो बहुत बढ़िया होता है। और अगर एक ही कंपनी में काम करते रहोगे तो ईयरली जो इंक्रीमेंट होता है फिर 2 साल के बाद वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। हेलो हेलो। यस भैया। हेलो। हाँ 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 भैया बोलो। one question. हाँ हाँ बोलो बोलो हमें। So, भैया, how do you get into like TCE? Did you give any exam or just walk-in interview? इस कैंपसिंग फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी। Okay. हेलो हेलो। भैया। हाँ हाँ बोलो। ये तो आपका सर रूममेट के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, रूममेट के साथ? हम लोग क्या होता था पहले, आप लोग का अभी तो बहुत अच्छा हॉस्टल बन चुका है। हमारे हॉस्टल में क्या होता था, क्योंकि 8 बंदे 7 बंदे सब एक साथ रहते थे, तो तभी रूम में बहुत हल्ला होता था, बहुत मज़ा आता था, तब अलग सा एक्सपीरियंस होता है। फिर हमारे जो बाद के जो सेकेंड ईयर से जो रूममेट थे, तीताश है, वो अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब रूममेट जो हो जाता है उसका मेनली हमारे जो होता है ना फ्लोर मेट, तो कल जो भैया आएगा आप लोग के साथ सम्राट, वो टोटल फ्लोर का जो हम लोग का जो फ्लोर मेट जो होता है ना, मतलब क्या होता है, मतलब सभी रूम हमारा रूम होता है और मेरा रूम का सबका रूम होता है। अगर हॉस्टल में रहोगे तो एग्जैक्ट आपका कोई रूममेट नहीं रहेगा। आपका क्या होगा पता है, मतलब सभी रूम, मतलब आज अगर इसके बेड में आप सो जाओगे, आपके बेड पे कोई आपका दोस्त आ जाएगा, आप ग्रुप स्टडीज करोगे, आप एक साथ मूवी देखोगे, आप एक साथ, मतलब एक टोटल फ्लोर। और उसके भी बढ़िया होता है, आप टोटल हॉस्टल भी आप मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। मैं इसके रूम में जाता था, उसके रूम में जाता था, इसके रूम में जाता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूममेट का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है, जो सीताश है, मेरा रूममेट है, अभी उनके साथ अभी भी मेरा टचअप में है। वो हम लोग मिलते रहते हैं, पूजा के टाइम मिलते रहते हैं, लेकिन अभी तो कोविड-19 है, हम लोग मिलते रहते हैं। और बाकी जो है मतलब जो फ्लोर का जो एक्सपीरियंस होता है ना,
वो बहुत बढ़िया, मतलब एग्जैक्ट आपका, आप बहुत सारे हमारे बहुत दोस्त लोग हैं आपके रूम, अपने रूम में सिर्फ रात को 2 बजे जाता है, रात को 1 बजे जाता है, हमारे पास वाले रूम में या फिर ये वाले रूम में वो वाले, हम लोग खेलते रहते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे। कि मेरे घर पे भी था, हम लोग सब ग्रुप स्टडीज मेरे घर पे करते थे, मेरा जो 2 रूम वाला जो रूम था, तो जो साइड वाला जो रूम होता है, तो 8 लोग, 10 दोस्त, 8 दोस्त, 6 दोस्त, रात को 1 बजे तक मेरे घर पे सब लोग पैकड ही रहते थे। तो वैसे नहीं कि मैं खुद के रूम में मैं अकेला एंजॉय किया और फिर मैं ऐसे मेरा रूममेट के साथ रहूँ, वैसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। क्या हुआ ना, हम लोग दोस्त लोग 1 बजे 2 बजे तक हम लोग रहते ही रहे, मतलब मेरे रूम में मतलब 4 बंदे 5 बंदे हमेशा रहते थे। मैं क्या करता था, मतलब मैं चाबी भी लगाता नहीं था, मतलब मैं चाबी पे लॉक भी नहीं करता था, मैं रख देता खुला, दोस्त लोग आते थे उधर, ऐसे होता था। मतलब रूममेट जो होता है ना, मतलब हॉस्टल का एक्सपीरियंस आप, मतलब आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, आप इसलिए पूछ रहे हो, आप अगर जब 4th ईयर में जाओगे ना, तो हॉस्टल का जो एक्सपीरियंस वो अलग ही होता है। मतलब आप हॉस्टल से निकल जाओगे, लेकिन आपके अंदर से हॉस्टल कब जिंदगी में नहीं निकलेगा। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा हेलो भैया। हाँ हिमांशु। हाँ, हम बोल रहे कि हॉस्टल में जो है फर्स्ट ईयर के लिए अलग फ्लोर, सेकेंड ईयर के लिए अलग फ्लोर, ऐसा होता है कि एक ही साथ? नहीं, पूरा अलग अलग हॉस्टल रहता था। फर्स्ट ईयर के लिए एक हॉस्टल, सेकेंड ईयर के लिए एक हॉस्टल। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, फर्स्ट ईयर के लिए अलग फ्लोर भी होता है, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था, एक टोटल हॉस्टल था हमारे ईयर के लिए, और एक हॉस्टल रहता था बंगाल हाउस में, हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर में, और ग्राउंड फ्लोर में रहता था हमारे जूनियर बैच, और हमारे ऊपर का जो 2 फ्लोर रहता था उधर रहता था हमारा सीनियर बैच। सो और हमारे सीनियर के लिए और भी एक हॉस्टल होता था, वो पूरा हॉस्टल रहता था। अभी क्या हुआ, अभी तो हमारे यूवीएम जयपुर में बहुत, मतलब उधर का लोकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हॉस्टल में एक फ्लोर में एक ही ईयर रहोगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर और बाद में क्या होता है, आप लोग अगर बाहर से जाओगे ना, ये रहता है कि एक ही फ्लोर में एक ही ईयर का बंदा रहेगा तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन 2-3 महीने अगर कट जाएगा ना, तो आप उतना मतलब सोचोगे नहीं, क्योंकि आपके फ्लोर में अगर सीनियर लोग भी रहते हैं, जूनियर लोग वैसे रहेगा नहीं, लेकिन आप देखा, मेरा बात मिला लेना, आप 2 बजे तक या 1 बजे तक, 12 बजे तक शायद सीनियर के रूम में पड़ा रहोगे, उधर जाके फीफा खेलोगे, पढ़ाई करोगे, या फिर ऐसे गॉसिप करोगे, ऐसे बात करोगे, अलग से चीज़ में डिस्कस करोगे स्पोर्ट्स के ऊपर। आप फुटबॉल देखते हो तो उसमें डिबेट होता रहेगा, बार्सिलोना हो, रियल मैड्रिड हो, मैन यू हो, आर्सेनल हो, चेल्सी हो, आईपीएल देखोगे, मतलब उसके लिए डिबेट होता रहेगा, क्योंकि वो अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब हाँ, ये तो हो मतलब दैट इज गोइंग टू बी, मतलब ये कॉन्फिडेंस हूँ मैं कि ये परमानेंट होगा कि आपका फ्लोर में आपका ही ईयर का बंदा रहेगा, लेकिन मतलब ये सब आप जो क्वेश्चन करोगे ना, ये अभी आपके अंदर में रहेगा कि काश मेरे फ्लोर में कुछ सीनियर नहीं रहे, मेरे फ्लोर में कोई जूनियर नहीं रहे, नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं तो ऑकवर्ड फील होगा। ये नहीं होता, मतलब मैं गारंटी हूँ कि नहीं होता। मतलब ये अगर आप 1 महीने 2 महीने कुछ हफ्ते रह जाओगे ना, तो वो होगा कि मतलब पूरा हॉस्टल आपका खुद का है, सभी रूम आपका है, ऐसा फीलिंग्स आ जाएगा कि ये भी मेरा रूम है, वो भी मेरा रूम है। और खुद के रूम में भी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे दोस्त बोलेगा अरे वो भी मेरा रूम है, ये भी मेरा रूम है, ये हो जाएगा। मतलब मैं बोला ना, हॉस्टल जो होने वाला है आप लोगों का, जो 4 साल का जो एक्सपीरियंस होने वाला है, तो आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे, मतलब इतना, मतलब दैट इज गोइंग टू बी फेरी टेल ऑफ योर लाइफ। मतलब आप अगर बड़े हो जाओगे, कि मैं अभी देखो ना 2020 में आके 2013 का बात कर रहा हूँ, मुझे अभी भी मैं आंख बंद करके मैं हॉस्टल देखता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, मैं रात को जब सोता हूँ ना, उसके बाद नींद से उठता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं शायद हॉस्टल में हुआ था, नहीं मैं तो यार मेरे घर पे हूँ। तो ये मतलब एक अलग होता है। हाँ, बोलो और कुछ। ओके, थैंक यू। हेलो सुबह। हाँ हेलो। मैं प्री फाइनल ईयर से हूँ, ईएम जयपुर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। 3rd ইয়ারে পড়িস? হ্যাঁ দাদা। আচ্ছা বল। Actually, আমি বলছিলাম लाइक अच्छा हिंदीতে বল, সবাই हाँ, বুঝবে, हिंदीতে বল। तुम तो रिसर्च लाइन में हो अभी, तो रिन्यूएबल के ऊपर हो, तो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था एक। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था AHP मेथोडोलॉजी फॉर विंड क्लस्टर्स, क्या मीन्स ये क्या होता है, एक एनालिसिस हाँ कैसे करा जाता है, परफॉर्मेंस क्या होता है। बोलो और एक बार बोलो। हाँ, AHP मेथोडोलॉजी फॉर विंड क्लस्टर परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये क्वेश्चन है, ये कैसा होता है।
क्या होता है अच्छा एज की, तो ये थोड़ा क्वेश्चन था। अच्छा, एज के ऊपर ना, एज के ऊपर, ठीक है ठीक है। एज तो की, आई हाँ कैन, एज अच्छा, आई एम गिविंग यू नंबर, आई एम गिविंग यू माय नंबर, ओके, और सर के पास से ले लेना, उसके बाद मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, ओके दादा। आई कैन सॉल्व इट। दादा नंबर ने 8617 8617 522 কেটে গেল 5 522 522 76 7 6। 6। আমি রিপিट मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार 8617752276, राइट? हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ओके, शुभेदा थैंक यू दादा। शुभेदा लिखे थे, हाँ हाँ। ओके, ये जिम फैसिलिटीज। जिम, मैं जिम नहीं जाता था भाई लेकिन बहुत लोग जाता था जिम में, तो उधर तो बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स रहता है, क्योंकि मतलब मेरा दोस्त लोग का अगर देखो, बहुत सारे दोस्त लोग का मतलब ऐसा गया आपका था। वेदर का मतलब कोलकाता से गए थे? अच्छा, मैं जिम वाले कंप्लीट कर लूँ तो जिम का फैसिलिटीज बहुत सारी इक्विपमेंट है, मतलब मेरे हम लोग का जिम है बहुत अच्छा है। और मतलब क्या होता है ना, सोचो एक फिजिक के ऊपर फैसिनेटिंग गाय हमारे सभी बैच में रहता है, क्योंकि सभी बैच में 10 या 15 लड़का आपको मिल ही जाएगा जो अच्छा फिजिक लेके जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, दोस्त लोग को ट्रेन करता है, जो बहुत मोटा होता है उसको भी ट्रेन करता है, जो बहुत दुबला होता है उसको भी ट्रेन करता है। और हमारे जिम के अंदर सभी इक्विपमेंट्स है जिम के अंदर, वो जो टेबल टेनिस वाला कोर्ट भी है जिम के अंदर, बाकी इक्विपमेंट भी सभी उधर ही है। सो जिम का फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। और अभी आता है अभिषेक दे किंग एडी। अच्छा वेदर वेदर जयपुर में वेदर वैसे मतलब वो डेजर्ट वाला वेदर नहीं है, जयपुर का वेदर बहुत अच्छा है। मतलब क्या होता है उधर उतना ज्यादा गर्मी नहीं होता है। अगर आप तोरबारी को था अभिषेक, बाड़ी न्यू टाउन। वो तो न्यू टाउन है भाई। अच्छा, तो हमारे तो क्या होता है ना, इधर जो होता है इधर बहुत स्वेट होता है, मार्च के टाइम से ही गर्मी आ जाता है। और मैं आपको बोलता हूँ उधर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको कंबल लगाना पड़ेगा रात में। जो गर्मी होता है वो मई के महीने में होता है, और गर्मी आते आते आप लोग का मतलब सेमेस्टर भी खत्म हो जाता है, फिर आप वापस आ जाते हैं। और उसका जो गर्मी है उसका क्या होता है, आप अगर घर के अंदर रहोगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसका वेदर हमारे इधर से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, विंटर में बहुत ठंडा पड़ता है, बहुत बहुत ठंडा पड़ता है, लेकिन वो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इधर होता है ना बहुत ह्यूमिड होता है, और उधर का वेदर बहुत अच्छा है। जयपुर ग्रीन एरिया है, जयपुर ऐसे मतलब बालू बालू जैसा नहीं है, सैंड नहीं है जयपुर। मतलब हमारे जो उधर है उदयपुर या मोर जो है, जयपुर बहुत ग्रीन एरिया है। आपका जो राजस्थान नाम का जो शब्द आने के बाद हमारे आँख बंद करके जो आता है ना, वो सेक्टर अलग है। वो सेक्टर आपका बीकानेर जैसलमेर वाला सेक्टर है, कि इधर आपका कैमल्स राइड होगा, उधर डेजर्ट होगा, वो अलग सेक्टर है। ये जो जयपुर वाला जो सेक्टर है ना, हाँ थोड़ा सा हाँ इंटरफेयर करूं? सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। वाइस चांसलर स्पीकिंग, स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या है, ये बात सुनते सुनते मुझे थोड़ा मतलब अच्छा अच्छा लगा, इसलिए आई जस्ट इंटरफेयर्ड। एक्चुअली ये है कि मैं बंगाल के लोगों को बोलते बोलते थक गया कि एक्चुअली राजस्थान में गर्मी कम है, माने ट्रूली स्पीकिंग। इसी वक्त अगर आप देखो, इसी वक्त मैं जहां पे बैठा हूँ, आई एम जस्ट पॉइंटिंग, कैन यू सी द फैन? देखो फैन बंद है, कैन यू सी दिस? अगर फैन चलाऊं तो ठंडा लग जाएगा, अभी अगर फैन चलाऊं ना तो इमीडिएटली ठंडा लग जाएगा। मतलब इट इज सो नाइस अ वेदर एट द मोमेंट। आई एम श्योर कि बंगाल में जो है या बिहार में है, यू नीड टू स्विच ऑन योर फैंस राइट नाउ और इवन योर एसी। यहाँ पे अभी भी अगर आप फैन चलाओ तो ठंडा लग जाएगा। हो सकता है 12 बजे के बाद शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक फैन चलाना पड़े, लेकिन उसके बाद जो है यू कैनॉट स्विच ऑन द फैन ऑल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे गर्मी मतलब ओनली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। इसके अलावा वेदर इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सूदिंग। ये बात समझाना बहुत डिफिकल्ट है, लोगों को लगता है कि कभी कभार लोग बोलते हैं डेजर्ट एरिया, तो आई ऑफन आस्क देम, डू यू कॉल लाइक वेस्ट बंगाल अ माउंटेन एरिया? ऐसा तो नहीं है। जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, यू डोंट कॉल इट अ माउंटेन एरिया, क्योंकि दार्जिलिंग में माउंटेन है।
लाइक दैट यहाँ पे जैसलमेर में डेजर्ट जरूर है, लेकिन इट इज फार अवे, तो जयपुर इज नॉट अ डेजर्ट एरिया, इट इज एब्सोल्युटली अ ग्रीन सिटी। अगर आप देखो तो ट्रीज का कोई, मैं थोड़ा मेरे घर से थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, जस्ट फ्रॉम माई बैल्कनी यू सी द व्यू। Sir, please on the camera. ऑन है sir. Visual, sir. On. आपको कहीं On है, भी on लग रहा है कि ये कोई डेजर्ट एरिया, इट्स एब्सोल्युटली अ ग्रीन सिटी। ये चीज जो जयपुर से बाहर रहते हैं थोड़ा समझने में दिक्कत आता है। ओके शुभा, यू मे कंटिन्यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सॉरी। इट्स नॉट अ डिस्टर्बेंस। और मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे भी बहुत फेस करना पड़ता है। उधर तो बहुत गर्मी होता है ना, आप तो जयपुर में रह चुके हो, इधर का गर्मी तो गर्मी ही नहीं। तो मुझे इधर आके बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होता है, क्योंकि कोलकाता का जो गर्मी होता है बहुत ज़्यादा होता है। कोलकाता का जो वेदर होता है ज़्यादा ह्यूमिड होता है, ज़्यादा इरिटेटिंग होता है। तो जयपुर का एक्सपीरियंस मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूँ ना, अप्रैल के महीने में भी रात को आपका चद्दर लेना पड़ेगा। मई में आके थोड़ा आपको गर्मी लगेगी, वो भी घर के अंदर नहीं। घर के अंदर आपको एक भी मतलब स्वेटिंग नहीं होगा। आपका जो वेदर जो बहुत उम्दा है। जयपुर सेक्टर, अजमेर सेक्टर, चित्तौड़ सेक्टर, उदयपुर सेक्टर का गर्मी नहीं होता है। वो जो गर्मी होता है, वो जो मतलब डेजर्ट एरिया है, वो अलग सेक्टर है। क्योंकि हमारे जो अगर हिस्ट्री में जाओ राजस्थान में, तो 4 सेक्टर होता था, रणथंभौर, आमेर, मेवाड़ और मारवाड़। तो मारवाड़ पर जो होता है वो आपका होता है बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। उधर होता है डेजर्ट एरिया। फिर भी बीकानेर में उतना ज़्यादा नहीं, मेनली होता है जैसलमेर और जोधपुर। तो उधर पे अगर जाओगे तो उधर आपका गर्मी होगा। फिर उसका जो डिस्टेंस होता है ना जयपुर से, तो हमारे इधर से दार्जिलिंग का डिस्टेंस उसका नज़दीकी होता है। तो वो मतलब हमारे जो जयपुर का एरिया बहुत ग्रीन हो रही है। अगर आप अगर कॉलेज में जाओ तो आपकी इधर उधर सभी जगह पर बहुत ग्रीन है। मतलब एकदम भी गर्मी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। ठंडा के टाइम बहुत, विंटर के टाइम ज़्यादा मतलब आपका कोल्ड महसूस होगा, लेकिन वो मज़ा आ जाएगा। वो ऐसा नहीं कि आपका एडजस्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा है, मतलब बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसका पानी भी बहुत अच्छा है, मतलब हेल्थ के लिए, अगर नहाने के लिए भी और पीने के लिए भी पानी सेक्टर बहुत अच्छा है। मतलब उधर जाने के बाद इधर आओगे, जब 4 साल के बाद इधर आओगे तब आप लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन इधर जाने के उधर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई उधर ठंडा बहुत जल्दी पड़ता है ना, तो क्योंकि हमने जो जियोग्राफी में पढ़ा है, जो रेत है जितनी ज्यादा ताप एब्जॉर्ब करती है उतनी ज्यादा डिक्रीज करती है, इसलिए रात को बहुत ठंडा होता है। ये रेत नहीं है, ये रेत सेक्टर ही नहीं है। आपको यही तो मतलब हमारे इधर पर अगर तुम बाड़वन में जाओ, मिदनापुर में जाओ, फिर जो मुर्शिदाबाद, बाड़वन में, तो उधर जो ग्रीन एरिया होता है ना, उधर क्या होता है, ग्रीन एरिया होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका जो मिट्टी होता है बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जयपुर के उधर ही उतना ही होता है। हमारे मतलब चारों तरफ खेत ही खेत रहता है। मतलब बहुत अच्छा एरिया है जयपुर सेक्टर, जयपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है। मतलब वैसा नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। हर और क्या होता है, शाम को या रात को एक बहुत अच्छा उम्दा एक मतलब एक हवा रहता है। वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंडा आ जाएगा, वैसा भी नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा आएगा, वो दिसंबर के महीने में आएगा, वा फिर तो तभी आप एडजस्ट हो जाओगे। वैसा नहीं कि वो मतलब एक अनसूटेबल है। अगर आप जाओगे भूखा तो आग वाग लगा के सेकने लग जाऊंगा। वैसा भी नहीं होगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो जयपुर सेक्शन का वेदर बहुत एडजस्टेबल होता है। रेत सेक्शन अलग होता है ना। रेत सेक्शन में वो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा बहुत ज़्यादा है। जो जैसलमेर सेक्शन है वो इधर से बहुत दूर है, जयपुर से बहुत दूर है। आप अगर कभी भी दिवाली के टाइम घूमने जाओगे दोस्त लोगों के साथ, तब समझ में आ जाएगा। बोलो और क्वेश्चन? हेलो, am I audible? Yes, Yes, भैया. Yes भैया. Okay, any other question? Otherwise, Shubhayu, I just want to ask you one thing. Yes, sir. Yeah, because you are now expertise in different sectors and different companies, and definitely work experience is more like, you can say, it's a treasure right now you are having. So only one question I just want to ask. If you again have an opportunity to come to UEM Jaipur, what changes and what differences you will feel like that, okay, now I will do this one?
क्या होता है ना, आपको एक बात बताता हूँ सर। अगर हम लोग क्या था, मेरे मम्मी पापा के साथ जब भी बात करता हूँ, अभी भी घर पे कोई भी डिस्कशन होता है, तो मेरा ये रहता है कि अगर ये कोविड-19 उठ जाएगा तो मैं जयपुर जाऊंगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगा तो मैं जयपुर जाऊंगा, उधर से मैं हॉस्टल में रहूंगा, मैं मेरा बंगाल हाउस में 216 नंबर का रूम में ही रहूंगा। ऐसा होता है क्योंकि मैं ना खुद नहीं चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंस रहे। अगर उस 32 एकड़ के कैंपस के अंदर जब मैं घुस जाता हूँ ना, तो वही वाला सुबह में वापस आता हूँ जो उदयपुरिया मोड़ में मतलब गोलगप्पा ये पानी पूरी खाने के बाद मैं वापस आता था, वही सिचुएशन में वापस आ जाता हूँ। मतलब मैं जब कॉन्वोकेशन में गया था, हम लोग जाके बोल रहे थे मुझे ये रूम चाहिए, मुझे इधर ही रहना है। अगर मतलब मैं जितना पता है हम लोग को, मुझे पता है कि अभी जो कॉलेज का जो कैंपस है बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो 2017 में पास आउट हो चुके थे, उसके बाद 18 में कॉन्वोकेशन के टाइम गए थे, तो उसके टाइम में ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। लैब बोलो, कैंपस बोलो, ग्रीन हो चुका था, बहुत डेकोरेट हो चुका था। लेकिन क्या हुआ था ना, उसका जो एसेंस होता है ना सर, मतलब वो चेंज नहीं होता है। और जो लोग अब 4 साल रह चुका है, तो उसका खुद का वो जो 13 to 17 वाला जो बंदा होता है, उसका अंदर हमेशा रह जाता है। तो अगर मैं हॉस्टल इसके बाद भी जाऊँ, तो अगर नहीं, मैं शायद 5-6 बार जाऊँगा, क्योंकि हमारे सीनियर लोग भी बहुत सारे आते थे। मेरा तो प्लान भी था इसी साल में विंटर के टाइम में जाऊँगा, क्योंकि मेरे जो दोस्त है अभी मतलब लाइव में भी था, इसमें भी था, अनुराय नाम का, वो तो उधर ही सेटल्ड है, जयपुर में ही है, राजमेर में है, पावर ग्रिड में। तो मेरा हम लोग को प्लान भी हो चुका था, हम जाएंगे, फिर कैंपस में रहेंगे उधर 2-3 दिन। तो मैं चेंजेस तो बहुत हो चुका है, मुझे पता है कि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, हमारे टाइम में भी बेनिफिशियल था, अभी तो मतलब और 100%, 200%, 400% इंक्रीज हो चुका है। क्योंकि मैं कॉन्वोकेशन के टाइम में जाकर भी मैं देखा था, मेरे जो नेक्स्ट ईयर कॉन्वोकेशन में गया था, वो लोग तो बोले और भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन वो जो एसेंस रहता है ना, वो कभी छूटता नहीं। मतलब वो वाला जो हॉस्टल का रूम, वो वाला जो कैंटीन है विश्वदा का, नाइट कैंटीन है, फिर वो जो फुटबॉल का ग्राउंड है, तो अगर मैं एक बार अंदर घुस जाऊँ, तो वही रूटीन में अंदर घुस जाऊँगा कि शाम को खेलने जाएंगे भाई लोगों के साथ, फिर टेबल टेनिस खेलेंगे, फिर सर लोगों के साथ जाएंगे। मतलब वो जो आपको मैं पहली बार यूएम जयपुर हमारे पास एक मतलब हम लोग हॉस्टल छोड़ के 17 में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी 2020 में हॉस्टल हम लोगों को अभी तक नहीं छूटा। Okay, one last, I think, professional question right now I am asking. Okay. Because right now you are in a company and taking over a technical job. अगर आपको opportunity मिले as an employer, so what type of skills and what type of, you can say, academic background and training you will look into UEM Jaipur students? You are coming, means आपको UEM जयपुर में आना है प्लेसमेंट के लिए, तो क्या आप स्टूडेंट्स में चाहेंगे कौन सी स्किल सेट होना चाहिए? ओके एज ए मतलब सोचिए सर, अगर मैं टीसी के तरफ से अगर आऊँ, क्योंकि आदित्य तो गए थे शायद अपने कंपनी के लेके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड द मेन थिंग मैं जो बाद में जाके सीखा, द बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जब मैकेनिकल का बैकग्राउंड के हो, फिर फिजिक्स का बैकग्राउंड पे हो, फिर BBA हो, PCU हो, CSE हो, जो भी हो, बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तुम 1 घंटे में 1000 FT कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, वो बहुत बढ़िया है, वो मतलब आपका डिसीजन मेकिंग, उसका स्किल, आपका एप्टीट्यूड। लेकिन आपको टेक्निकल कंपनी के लिए आपको ऑप्ट होना है, आपको मतलब जॉब लेना है, तो 4 साल के पढ़ाई का बेसिक्स उतना स्ट्रांग, उतना ज़्यादा, उतना बड़ा न्यूमेरिकल आप तब 1 दिन के पढ़ाई में कर पाओगे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है। आपका सोचिए, अगर हीट ट्रांसफर नाम का हमारा एक सब्जेक्ट है, तो उधर हीट ट्रांसफर का जो मेन फंडा होता है 3 चीज़ से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन का फॉर्मूला -KA dt/dx आपको सारे वो दिमाग में रहना चाहिए। फिर उससे अगर 3 पेज से 30 पेज तक का अगर न्यूमेरिकल कर पाओगे तो वो ठीक है। लेकिन आपका एक जो इंटरव्यूअर होगा, वो आपको वही पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन। इसका जो बेसिक्स होता है आपका, और बहुत छोटा चीज़ जो होता है, जो बेसिक्स होता है, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और
बाकी होता है आपका डिसीजन मेकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ये सब चीज़ आपका मेन होता है। और ज़्यादा मतलब नर्वसनेस के ऊपर कंट्रोल होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एज ए स्टूडेंट बहुत अच्छा होता रहता था, लेकिन तीन कंपनी 4 कंपनी में रिजेक्ट हो चुके थे पहले में, फिर उसके बाद वो खुद का एनालाइज करने के बाद उसको जॉब मिला था, क्योंकि वो जो इंटरव्यू के टाइम वो नर्वस हो जाता था। क्योंकि मैं अगर इंटरव्यू के टाइम आप एक ज़्यादा नर्वस मत होना, आप लोग जो भी मैं भाई लोग को मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि मैं पहले इन्फोसिस, उसके बाद जादवपुर की यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू, फिर मैं ये TCS के जॉब के लिए इंटरव्यू, जो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। मुझे एक ही बात दिमाग में था, क्योंकि हमारे मॉक इंटरव्यू लिया भी जाता था UEM से मैं सीखा हूँ, 5 या 6 हम लोग के साथ मॉक इंटरव्यू हुआ था, मतलब 4th ईयर में। तो मॉक इंटरव्यू के ऊपर आप एक सीख पाओगे, आपके खुद के नर्व के ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए मेन। और एक चीज़ है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देना है कि सर आई रेड इट अर्लियर बट राइट नाउ आई कांट रिकॉल इट। तो आपको वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाहिए, गलती मत करो। और अगर गलती भी करोगे तो उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल देना कि नहीं यही है वो चीज़ है। लेकिन ये सब IT के लिए होता है या फिर मार्केटिंग के लिए होता है। अगर टेक्निकल जॉब के लिए आप जाना चाहते हो तो अपने बेसिस को स्ट्रॉन्ग करते रहना। सिर्फ फार्मूलाज जो है, आप अगर 3rd ईयर में चले जाओगे तो 2nd ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स होता है, हीट ट्रांसफर होता है, थर्मल होता है, मशीन डिज़ाइन 1 होता है, ये सब जो सब्जेक्ट्स होता है, फ्लूइड डायनामिक्स होता है, इसका जो बेसिक्स होता है वो एक दिन में, मतलब हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर 2 महीने में 2-3 बार एक बार देख लेना, एक बार चेक करने रहना चाहिए। अगर मैं ये भाई लोग को मैं बोल रहा हूँ, मेरा जूनियर लोग को बोल रहा हूँ, वो एक बार देखते जाना। क्योंकि आपका अगर जब इंटरव्यू के टाइम आपको अचानक से 4th ईयर में रहोगे, आपको अचानक से पूछेगा कि कन्विक्शन का फॉर्मूला बोलो, या फिर आपको स्टीवन बोल्ट्जमैन लॉ यही पूछता है। कभी ये नहीं बोलता है कि ये है पैरामीटर, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये कोई नहीं पूछता है। फिर आपको पूछेगा स्टीवन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में आप बोलो, फिर सिग्मा इंटू T⁴ ही आपको बोलना है, सिग्मा क्या है, T क्या है, उसका T⁴ क्या है, E क्या है, आपको यही बोलना। मतलब इंटरव्यू के लिए यही चाहिए, आपका इंस्टेंट के ऊपर आपका बेसिस कितना स्ट्रांग है, उसके ऊपर न्यूमेरिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप 3 पेज से लेकर 30 पेज तक न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ सर। Thank you, Subhayu. So I hope students today got a very deep understanding of the campus as well as the hostel life. So yeah, thank you very much. You have given so much of your important time. Bisway sir, are you here? Hello. Bisway sir. Hello. BC sir, are you here? I'm absolutely here. Yes, I'm continuously here. Okay. So I think we can wind up the session for today, sir. Hello. Thank you so much, Subhayu. We can wind up the session today. Thank you so much, Subhayu. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thanks to all Subhayu. the students for attending this. Thank you, Subhayu. Thank you. Goodbye. Goodbye, Thank bye. you, Subhayu. सब लोग को गुड बाय चाहिए। गुड बाय गाइस। थैंक यू भैया। Bye. Thank you, Professor Rahul Sharma, for भैया बाय। थैंक यू भैया एंड सर। Thank you, sir. सब लोग Thank you, sir. कोविड-19 के टाइम हेल्थी, मतलब सेफ रहना, ठीक है? ठीक रहना। चलो टाटा। Thank you, Subhayu. Bye.